edition of the Naharjita Bookathon presented in association with the Raisoni Foundation. In this session, we're going to explore the book, The Truth About Investing, 101 Myths Debunked, which is a comprehensive guide on investment, authored by Sanchit Taksali, a certified financial planner. This book delves into the common myths and misconceptions about investing, aiming to provide readers with a clearer understanding and more informed approach to their investment strategies. It covers a broad range of topics from basic investment mistakes to the psychology behind investment decisions. Taksali's work is a valuable resource for individuals seeking to navigate the complex world of investments with more confidence and knowledge. Mr. Taksali is also a speaker for this session. He is a dedicated finance professional and the founder of Danik.com, where he focuses on financial education and community building. With a background as a certified financial planner and an MBA from BIT Misra, he has educated over 150,000 individuals on financial literacy. Author of The Truth About Investing, 101 Myths Debunked, Sanchit is passionate about empowering people with the knowledge and tools for financial success. Our moderator for this session is Mr. Jeetam Saini, who owns Jeetam Saini & Co., a Jaipur-based firm providing legal services in startups, NBFCs, insolvency, trademarks, MSME litigation, and more, appearing in Rajasthan High Court and various tribunals. With 8+ years of experience, Jeetam holds degrees in CS, LLB, LLM, DLL, DTL, BCom, and is an ISCI registered valuer. He is affiliated with numerous professional organizations and volunteers with the CSRF NGO, advocating for legal knowledge and filing PILs, including the Dravyavati River case. Without further ado, I'd like to hand over the session to our moderator. I begin with some of the questions with our author. The main thing I like to ask you, what inspired you about writing to this book? So Jeetam, when I was just studying about the financial market, or when I was working even with the corporates also, there are a lot of struggles I was facing while interacting with the clients. There are common things what we ever had. Like whenever we do any conversation, there are common questions always comes in. कि कहाँ invest करूँ, कैसे invest करूँ? In stock investment, stock market is like a gamble. There are a lot of things in the conversation comes in. And whenever I discuss with them, कि सर हाँ investments कर सकते हैं, these are the strategies you can follow. There again, other beliefs and myths comes in. And it's not with one person. There are a lot of people and the same questions comes in. So I decided rather than disclosing out thing, demystifying it out. So I decided why not to answer these questions, because whenever they had a question, they always confuse themselves. So they don't know what kind of questions to ask to even to the advisor also or to themselves also. So that is where I got my inspiration. Why not to write a book about investing myths which everyone of us carry. Okay. Before moving further, one thing I noticed about your index, which start with you have started the word investment or do you invest, and after that there is another point, kitna return milega. So why you created this contradict initially? So always readers or anything else? Okay, so as I said कि जैसे ही हमारी कॉन्वर्सेशन किसी का स्टार्ट होती है, so पहली चीज हमारा यही आता है कि ये कोई बात कर रहा है यार इन्वेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, आपको इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंड देन द मोमेंट इन्वेस्टमेंट कम्स इन, अनदर क्वेश्चन कम्स इन, यार कितना रिटर्न मिलेगा. और वहीं पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसी पे उनके साथ कुछ ना कुछ बिलीव्स या मिथ्स अटैच हो जाते हैं. किसी की क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में जानने के लिए, किसी की क्यूरियोसिटी होती है कि सामने वाले का पोर्टफोलियो क्या है. तो इसीलिए जो इंडेक्स क्रिएशन है, जो बुक का कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको इंग्लिश फॉर्म में मैंने दिया है, सो दैट कि कोई भी रीडर हो जिसको इंग्लिश भी आती है, या आज की यंग जनरेशन है जो जनरली व्हाट्सएप पे ज्यादा कन्वर्सेशन करती है, हिंदी को भी इंग्लिश के थ्रू. सो दैट इज व्हाई आई यूज्ड इंग्लिश एंड हिंदी एज अ मीडियम बुक, जहाँ पे इनकी कॉन्वर्सेशन तो हो लेकिन वो कॉन्वर्सेशंस को बुक को एक इंटरेस्टिंग फॉर्म में पढ़ पाए. So, while writing this book, what challenges you have faced or any interesting point which you want to discuss right now? Yes, there are a lot of challenges I faced. So I'll tell you a very honest thing. It's always been 8 years. So the idea about the book came in year somewhere around 2017 or even 2016 in between. Just after a while I was working in it. And I decided to write a book. But जब book लिख रहा तो सोचा लिखूं कैसे. The structure part always comes in कि आपको पता है लिखना है, लेकिन आप जब लिखने बैठते हो so there are a lot of thoughts comes in. So you won't believe
कि पहले तो thoughts what comes in कि I'll go with the literature review, I do all the study part, then I comes in लोगों को study नहीं, there should be a storyline. But when I came to a storyline, I started writing, you know, again another thought comes in कि यार story में वो शायद myth cover नहीं कर पाए, या the angle which I want to share वो मेरा personal angle हो सकता है, generalized angle नहीं मिल पाएगा. तो वो स्टोरी लाइन को समझने के लिए आई डिसाइडेड इसको और थोड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो वो सोचते सोचते कई बार 1 साल निकल गया. फिर ऑफ कोर्स द मोटिवेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. कितने टाइम से आप सोच रहे हो लिखना है, फिर आपका खुद का पर्सनल बिजनेस लाइफ होती है, तो उसमें आप फोकस नहीं कर पाते. So that is where at last finally last year something happens or a motivation kicks in, comes in. Then I finally decided to write a book and to complete it anyhow. So I joined a community, another community. With the help of that community, there are a lot of authors in there. So there is always a saying कि अगर आप ऑथर्स के बीच में बैठोगे तो आपका माइंडसेट भी इंटेलेक्चुअल हो जाता है और आप उन्हीं के साथ सीखते हो कि लिखना कैसे, स्ट्रक्चर कैसे. एंड यू वॉन्ट बिलीव, जो 8 साल मुझे सोचने में या एक एक पॉइंट को लिखने में लग रहे थे या जो एरर्स थी, it just took me almost 2 months to complete the entire book with a structure part. वो सारे थॉट जिस स्पीड से हुए ना फुलफिल, दैट इज वेयर आई बिलीव इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई लाइक अबाउट दिस एंड दैट. Great. That's a great journey. I like to ask one thing, but that's the most important. You have written the book in the financial matter. So already you have some of the burden on your shoulder that financial books attract less people of readers. So you have created book as per the bird view, which I in the book. It's shown that that you have started. First of all, you have created that the problem. After that, the myth. Then the solution. What is the logic behind it? Okay, so I'll show you one thing. I'll just show you how the book actually looks like. So when it comes to the book part, we always see there is a rupee sign going in the book part. So that's another mentality which I have put in with the question part. So when you see the rupee part, so we all Indians are across the world. We are Indians are living across the world. Some have become analyzed, some have their own businesses, and some many Indians still there. But when it comes to the structure also, it always says कि whenever we think about investment or anything, हम लोगों के माइंड में होता है कि यार पैसा ग्रो होना चाहिए. लेकिन जब हम पैसा ग्रो करने की बात करते हैं, उसी के साथ हमारे माइंड में कुछ बिलीव्स आते हैं. यार अगर ज्यादा लालच आ गया तो क्या करें, लालच बुरी बला है. कई बार कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट सही किया नहीं किया. सो वी आर कीप ऑन डूइंग अ सेकंड थॉट्स, और वो सेकंड थॉट्स के साथ हमारी एक स्पिरिचुअल लाइफ भी आती है. और अनदर पॉइंट आता है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो सही है गलत है, या उसके लिए मुझे राय लेना चाहिए नहीं. सो अनदर थिंग कम्स अप कि हमारा एक मिथ आता है, उसके बाद एक बिलीफ बिल्ड हो जाता है, और उसी बिलीफ के बाद हमारी एक मिस्टेक करते हैं कि यार चलो मैंने कुछ किया है तो सही किया होगा, लेट्स ट्राई इट आउट. अब वो जब ट्राई इट आउट वाला होता है, वहीं पे हमारी गलती होती है, काश मैं वैसा कर लेता. सो हम उसको खुद में ही रिग्रेट फील करते हैं, एंड दैट वी कॉल इट यार ये मेरे बस की बात नहीं है, या वी ब्लेम इट टू आवर डेस्टिनी आल्सो, और वी ब्लेम कि ये मेरी समझ के बाहर है. एंड दैट्स वेयर द नॉलेज इज आल्सो मिसिंग. दैट्स व्हाई द बुक स्ट्रक्चर इन सच अ वे जहां पे आपका एक मिथ गिवन होगा, उसके साथ एक बिलीफ है, और उसके साथ में एक मिस्टेक है कि उस बिलीफ से हम क्या मिस्टेक करते हैं. एंड लास्टली इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप उस मिस्टेक को हम कैसे अवॉइड करें विद अ सॉल्यूशन दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर. I think you have given the answer of my another question also, which I am going to ask regarding the unique style, which you have already given. So that's the interesting point. And before moving further, I just like to get some information that your index is in a systematic way, but it's showing since from starting 1, 2, 3 till to the 101. But as per my comparison, it's showing up to 99. So is there any difference or some point of clue you have hidden in this index? No. We have total 101 myths. And if you check it on the next page also, there is also 101 myths. So I make sure there are total 101 myths going on. And the point is overall covers out कि 101 ऐसे कौन से myths हैं जो हम Indians कैरी करते हैं. Whether it's about being our ancestor, whether it's about our parents, and even the young generation also. But yes, the point which you have at 99 is that each and every chapter contains 9 myths. So there are total 11 chapters with 9 myths in it. But in the last chapter, there are additional 2 myths. So that 101 जो एक शगुन जिसे हम कहते हैं ना,
किसी मंदिर में भी जा रहे हो आज 101 का सर्विस चढ़ा दो या लिफाफा चढ़ा दो। सो सेम वे हम इन्वेस्टमेंट्स को भी वैसे ही देखते कई बार कि यार 101 कुछ हो जाना चाहिए या ऐसा कर देना चाहिए। तो उसी को लेके इस माइंडसेट को लेके वी डिसाइडेड कि 101 मींस डीमक वी हैव टू डू। Great, sir. Great, great. Sir, I have gone through some of the chapters. I like to ask one thing: which of the chapter or any one of the chapter which you like the most, or you want to describe during this conversation, if you want, any? That's a very good question you have asked. I would say all the chapters are very good because each and every chapter contains a lot of interesting part. But I'll tell you one important part. It's about the illiteracy on financial product and services. That I believe it's in chapter 7 of the book. Okay. And I'll tell you one thing about that part. कि जब भी हम किसी प्रोफेशनल के पास आते हैं तो दे ऑलवेज थिंक अबाउट क्या वो एजेंट होगा या कोई एक प्रोफेशनल आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होगा। दे ऑलवेज थिंक इसका कोई कमीशन अटैच होगा या फिर ये ऑलरेडी मेरा एडवाइजर मुझे बता देगा, मेरा जो एजेंट है वो बता देगा इसके पास लेने से रिस्क है या इसका ही फायदा है, मेरे पास तब ऐसा नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स कम्स इन एंड दैट्स वेयर देयर नॉलेज इज आल्सो टेस्टेड पार्ट। या तो वो क्या कहते हैं मैंने सब इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, तो एक खुद के ही मिथ्स और बिलीफ्स में वो इतने खोए रहते हैं, दे नेवर वांट टू एक्सप्लोर द न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। That's why I like one of the chapters of the chapter 7, which I'll talk about is illiteracy on financial product. हम लोग जनरली उन प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को जानना नहीं चाहते, ये सोच के कई बार क्या वो प्रोफेशनल है वो बता देगा या फिर मेरा एजेंट पे मुझे भरोसा है तो बाकी चीज पढ़ने की नहीं जरूरत है, हम खुश है, हमें पता है वो जो भी बताएगा। सो वी हैव अ ब्लाइंड फेथ आल्सो। सो दिस इज वन ऑफ द इवन बिगर मिस्टेक वी ऑलवेज डू कि हमने ब्लाइंड फेथ में इन्वेस्ट कर दिया, बाय चांस वो इन्वेस्टमेंट नहीं चला तो वो लॉस हो गया तो वी नेवर थॉट अबाउट दैट टाइम। हम इमोशनली इतने इंडल्ज हो जाते हैं उस चीज को लेके, वी थिंक अबाउट क्या वो जो डिसीजन लेगा सही लेगा। एंड दैट्स वेयर आई आल्सो सेड कि जब भी ऐसे कुछ कंडीशन आती है व्हाई नॉट एक बार आप रिव्यू करके देखें। भाई हमें पता जब हम रोड पे चल रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल है, लेकिन हम कई बार ये थोड़ी ना सोच देते कि पुलिस वाले नहीं है तो लेट्स क्रॉस द सिग्नल एंड गो हेड, हम ऐसा कहीं नहीं करते। सिमिलरली कई बार कुछ ऐसा करते हैं तो व्हाट हैपेंस आउट देयर इज एन एक्सीडेंट, लेकिन हमें पता है सिग्नल है लेकिन सिग्नल तोड़ते हैं तो एक्सीडेंट होता है या फिर अचानक से पुलिस वाला आता है तो आपका चालान कट जाता है, राइट। सिमिलरली थिंग्स हैपन विद इन्वेस्टमेंट आल्सो। हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं लेकिन हम उस भरोसे में छोड़ देते हैं कि देखना क्या, कोई देख नहीं रहा, चलने दो, वो जो कर रहा है सही कर रहा है, चलने दो। सो दैट इज व्हाट द मेंटल साइकोलॉजी वी ऑलवेज हैव। दैट इज व्हाई आई सेड इट कि हमारी जो नॉलेज है ना वो कई बार आधी हो जाती है या फिर भरोसा इतना ज्यादा होता है कि उस नॉलेज को हम दोबारा रीगेन या उसको इन डेप्थ रिसर्च नहीं करते। That's the depth info. So it's a financial related book. So I like to ask one thing also. What kind of research did you undertake for this book? That's the main point because it's a financial related book. And what new skill or knowledge did you acquire during this process? Yes, I'll tell you. That's again a very good question you have asked. Okay, so when I tell you one thing, when I was like writing the book part, there is one important part comes in कि I have writing out the thoughts part. So mostly I believe कि मेरे thoughts हो सकते हैं. So in year 2020, when there was a very social media app was going on, Clubhouse, audio chat, one of the very famous app. At that time I decided why not ask the people their views point about investment. So there is a group people comes in, always everyone is coming out. I asked them a very good questions about it. कि सर आपका इन्वेस्टमेंट को क्या thought process है? And you won't believe measure of the questions. So there are more than like I have a community of 20,000 people, and when I do open this chat room, so more than 500 and 600 people comes in. We always have discussion about it. Common questions they have always asked. हर एक क्वेश्चन के साथ उनका एक अनदर क्वेश्चन आता। So let's say I'll ask them a question कि सर आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उससे आपने क्या सीखा है? They always said मेरे उस एजेंट ने बताया था और मुझे ये नहीं पता मार्केट कैसे काम करता है पर मुझे रिटर्न अच्छा मिल गया था। सो उसके बाद अनदर डे क्वेश्चन कम्स इन, मार्केट में आपको क्या लगता है सर? मैंने कहा आपको मेरी एडवाइस जाननी है और टिप्स जाननी है। सो देयर अगेन क्वेश्चन कम्स इन कि हम लोगों में क्या होता है कई बार कोई हल्का सा भी कॉमन कन्वर्सेशन है, जनरलाइज क्वेश्चन होता है, हम लोग कई बार सोचते हैं कुछ एक अच्छी चीज या टिप मिल जाए। अब ये माइंडसेट व्हाट आई थॉट अबाउट जब मैं इसकी रिसर्च भी कर रहा था
I studied the foreign books also, Psychology of Money and other psychological investing book also. लेकिन वहां पे क्या था, सब टेक्निकल था, काफी ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स थे, हर्ट बिहेवियर थी, मेंटालिटी थी, ह्यूरिस्टिक बिहेवियर, सो देयर आर बिहेवियर फाइनेंस टॉपिक कम है. बट एज अ लेमैन अगर मैं बात करूँ, कोई भी इंडियन हो या कोई भी यूजर हो, उनके लिए जार्गन समझना आसान थी. लेकिन द इशू इज कि वो उसकी इंटेंट तक नहीं पहुंच पा रहे. हमें जार्गन से याद नहीं रहती, लेकिन हमें सिनेरियो अगर कोई बता देता है तो सिनेरियो याद हो जाता है. वी ऑलवेज रिमेम्बर कि मूवी का क्या सीन था, वो हमें याद हो जाएगा. लेकिन अगर उसी को मैं एक बुक में लिख के दे दूं, आपको वो याद नहीं हो पाएगा. या उसको एक टेक्निकल जार्गन में दे दूं, ये सिनेमेटोग्राफर था, उसकी ये डिजाइन, तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता था. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि इस बुक को इतना जनरलाइज करें कि एवरीवन शुड रीड आउट. उनके लिए वो टेक्निकल जार्गन्स ना होके इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद इन देमसेल्फ आल्सो. सो दैट इज व्हाई आई डू लॉट ऑफ रिसर्च. और ये ट्रेनिंग भी मैं करता था फाइनेंशियल लिटरेसी की. जब मैं लोगों को बताता था कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड ऑल दीज थिंग, एंड दैट्स वेयर आई केम अक्रॉस कि ये डेटा बहुत सारा इकट्ठा हो गया है. अब ये डेटा को सही तरीके से सिंक्रोनाइज करके लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है. सो दैट इज व्हाई वन ऑफ द स्टेप इज कि इसको ऐसे पॉइंटर्स वे में दो सो दैट एवरीवन कैन रीड आउट, जिसको रीडिंग का भी शौक नहीं है. So they once read out the even the table of content or a book part, they get to understand कि book के अंदर ऐसा क्या है जो उनको पढ़ना चाहिए. Thanks for the info. I just before moving further, I just like to add one thing also. What's the core message do you hope reader will learn and apply from your book? Along with this, what do the theme in your book relate to current trends in education and skill development? I combined two questions, so I request you to give the simple answer in the 1 or 2 lines. If you Okay. So in the each book there are 9 worksheets. I'll tell you. There are solutions with the questions, what questions one need to ask, and an activity-based worksheet. Okay, so if someone wants to do and demyth all their scenario part, if they believe कि हमारे myth जो है ये गलत है या जो मैंने लिखा है वो एक पर्सनल व्यू पॉइंट है, वो ऐसा नहीं है, तो एक वर्कशीट दी, उस वर्कशीट को when we do implement out, we get to understand our investment itself. हम लोग खुद एक DIY इन्वेस्टर बन पाएंगे और एज उसको समझ पाएंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या मिस्टेक्स है. So that's another part. And when it comes to the इससे क्या स्किल सेट लोगों की डेवलप हो सकती है. सो ऑफकोर्स एक कहावत है मार्केट की कि इट्स 80% बिहेवियर और 20% इज योर स्किल सेट. सो जब आप खुद के बिहेवियर को समझ जाएंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड आउट कि आप खुद क्या मिस्टेक कर सकते हैं और उससे आप कैसे अवॉइड कर सकते That's the fact point. Behavior of an individual plays the important role in the market as well as for the investment. So last, my question is, how can reader measure their progress or success in applying the skills which you have taught in your book? Any, if you. हैं. Yeah, so I told you I have written a worksheet. So each chapter, at the end of each chapter, if you look at the book also, at the end of each chapter, there are worksheets. And that worksheet is like they can get it over the Excel also. So I have designed that and I given the link also. People can go there, download that DIY toolkit of that entire book part where these worksheets are available. So अगर उनको हाथों से नहीं लिखना, so they can do it with their laptop also. It's always a one-time exercise, but yes, अगर आप साल में 2 या 3 बार भी एक्सरसाइज को करते हैं, so you get to aware yourself. So आज आपको पता रहेगा कि मैं जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ वो कहाँ पे है. आपको ये पता रहेगा कि वो इन्वेस्टमेंट्स आपने किस पर्पस से किए. आपको ये पता रहेगा कि वो इन्वेस्टमेंट से आपने जब स्टार्टिंग कर रहे थे तो आपका क्या लुकआउट था और आज की तारीख में आप क्या लुकआउट है. प्लस साथ ही साथ आपको ये समझ में आएगा कि वो पूरे इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई थी और आज आप जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपने अपने एडवाइजर से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए और ऐसे क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो ही एडवाइजर आपका सही आपको एडवाइस दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो ये सारी चीजें उस बुक के अंदर में एक प्रॉपर तरीके से लिखी हुई. Great, sir. We have discussed a lot about the book, about the index, about your most prominent chapter in your book, and the technique which have you used, or the outcome which can reader can use. So we are now at the conclusive part of this session. So before moving, point out some of the takeaways. So before moving that, I like to ask some of the more question to the our author.
the conclusion part, if they want to give some input on the book or the readers, why to choose this? So, sir, please. Okay, of course, it's very, when you said why the readers choose this book. So as I always said, कि जो बुक की डिजाइन, कंटेंट और इवन एवरी पार्ट इज देयर, सो उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं। अगर आप खुद एक इन्वेस्टिंग जर्नी एज अ बिगनर स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी एक कॉन्सेप्चुअल वाइज प्लस साथ ही साथ प्रैक्टिकल इनसाइट्स आपको मिल रही है। इवन आई टेल यू वन मोर अबाउट दिस बुक पार्ट कि आज के तारीख में जहाँ हम लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजीज या स्किल्स की बात करते हैं, इवन हम कहते हैं कि आज कोई नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्या है, उन प्रोडक्ट्स को भी हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं इस बुक्स में मैंने एक बहुत सिंपलीफाइड क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया है। तो अगर कोई भी यूजर या रीडर भी बुक्स को पढ़ना चाहता है तो जब ये बुक को पढ़ेगा तो दे गेट टू अंडरस्टैंड आउट कि सवाल क्या पूछने होते हैं। तो जनरली एवरीथिंग कम्स विद अ क्वेश्चन पार्ट। इफ यू नो द क्वेश्चन देन इट बिकम्स इजी टू फाइंड एन आंसर। बट अब सवाल कैसे पूछना है या क्या क्वेश्चन हमारा फ्रेम आउट होना चाहिए उसको इस बुक्स में मैंने डाला है, सो दैट each and every person, whatever they are reading about a book, a particular topic in investment or in their life also, they get to understand कि questions को पूछने से उसका आंसर हमें, whether we are doing a self conversation or with someone else also, हमें क्लैरिटी मिल पाती है कि क्या जानना है। क्योंकि आज हम आंसर्स की बात करते हैं, we can easily go to a Google and search it out कि मेरे नियर बाय में जोमेटो है या शॉप है, वो हमें मिल जाता है। लेकिन वो क्वेश्चन हमने गूगल से पूछा, अगर यही क्वेश्चन हमने हमारी पर्सनल लाइफ पे हमारे पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करी या हमारे एडवाइजर के साथ कॉन्वर्सेशन करी, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, रिसोर्सेज है, वो आपको क्या सही आंसर दे सकते हैं। वही चीज आप गूगल करते हैं तो गूगल पे क्या होता है, मैं जनरली काम से आई गिव राइट अ ब्लॉग, आई कम एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई डू। सो आपके पास लॉट ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको सेग्रीगेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई आई मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी बुक पढ़े तो उनको एक क्वेश्चंस का फॉर्म अप कर पाए, उनको एक आइडिया मिल पाए कि जनरली हम इन्वेस्टमेंट्स करते हुए किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इवन हमें अगर इसको नॉलेज गेन करना है तो हमें इससे अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है और इसमें हमें पेशेंस क्या गेन आउट होगा। क्योंकि ऑलवेज कम्स है कि आज मार्केट में पैसा डाल के रिटर्न मिल रहा है, लेकिन निकालना कब है ये कौन बताएगा, या फिर ये तक कौन बताएगा कि वो मेरा गोल फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जब आप निकालने की बात आती है और हमें देखता है कि प्रॉफिट 20-30% है, फिर सोचते हैं हम, अगला सवाल आता है कि काश थोड़ा और बढ़ जाएगा, अभी इतनी जरूरत नहीं है पैसे की, वी कैन मैनेज इट आउट। दैट्स अगेन अ क्वेश्चन कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे आपका गोल अलग था, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो देखते हैं आपका गोल या माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो ये सारी की सारी क्वेश्चंस जो आते हैं, ये एक्टिविटी वी डू एज एन इंडिविजुअल, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर एक सही इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो वो उन रीडर्स के लिए जो एक इन्वेस्टिंग में इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हैं। ग्रेट ग्रेट सर। एक चीज मेरे को अभी आपके साथ डिस्कशन करने के बाद में एक चीज फाइंड आउट हो चुकी है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स डोंट नो कि उनकी रियल वांट क्या है, कि उनके पास क्वेश्चन ही नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। दे जस्ट ओनली वांट कि जस्ट आई वांट टू डू द इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, किसमें करना है, कैसे करना है, वो क्वेश्चंस आपने दिए हैं। तो इट मीन्स यू हैव गिवन द राइट टू द इन्वेस्टर्स कि वो पूछ सकता है कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस नहीं है। एंड इसमें एक मेरा बाय स्क्रॉलिंग आउट और जो मैंने इसमें रीड आउट किया बुक में, मेरे को एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे विच आई लाइक टू ड्रॉ अटेंशन हियर टू दी ऑल दी लिसनर्स। एक दो पॉइंट्स थे, उनमें से एक था कि देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी नहीं कुछ और बताओ, मोटा पैसा बने। तो ऑलरेडी इक्विटी पहले हाई रिटर्न देता है, इवन दो इन्वेस्टर्स वांट कि है ना इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा ऑप्शन बताएं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था आपका कि इफ यू वांट टू गिव अनदर ऑप्शंस आल्सो, और ऐसा कुछ है इसके पीछे इक्विटी के बाद में भी और क्या डेंजर हो सकता है, मतलब जो रिस्की हो। See, you have already answered my question also. मैंने जैसा कहा था कि हमारी ग्रीड जो होती है ना, वो हमें कहीं भी एक जगह टिकने नहीं देती। सो लेट्स से आपने बहुत सारे स्टॉक्स ले रखे होंगे, सो देयर आर टू माइंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इस क्वेश्चन में भी, इस मिथ के साथ, देयर आर टू माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। एक वो इन्वेस्टर होगा जो कहेगा मेरा एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, ज्यादा प्रॉफिट लॉस नहीं होता, तो वो बोर हो जाएगा उस पोर्टफोलियो से। वो कहेगा यार इक्विटी में मजा नहीं आ रहा, आप तो कुछ और बताओ जहाँ पे मोटा पैसा बने। इक्विटी में 10-12% बन जाता है। सो एक स्टेगनेंट पोजीशन में आते थे, डोंट वांट कि यार इक्विटी में तो चलो आ रहा है 12-13, इट्स अ गुड पार्ट, हम म्यूचुअल फंड में क्या हमें वहां पे स्टेबल आ रहा है। दे वांट कुछ और ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल जाए
जहाँ पे हमें इससे ज्यादा रिटर्न मिल पाए. सो लोग एक हो गया स्टेबल पर्सन, एक जिनका होता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिटर्न आते हैं, ऑलवेज थॉट कि इक्विटी में तो जरूर ऐसी कोई और भी एसेट क्लास होगी जहाँ पे इससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. तो इट्स ऑलवेज अबाउट द ग्रीड. लेकिन उस ग्रीड को भी देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग आता है. एक आता है कि यार एक जगह ऑलरेडी है, चल रहा है, एक वाई नॉट एक और एसेट क्लास इसी खड़ी कर दे जहाँ पे हमें और अच्छा रिटर्न मिल पाए, ताकि हमारा एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो पाए. दूसरा ग्रीड आता है जहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे रहा है, काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन हमारी ग्रीड ये कहती है कि इसी के रिटर्न से हम एक और रोटेशन मनी कर पाए या इससे ज्यादा रिटर्न कमा पाए. सो दे ट्राई टू टेक अ रिस्क. सो इक्विटी में लेते हैं तो वो कई बार एफएनडोस कर लेते हैं, या फिर इवन आज की तारीख में कोई क्रिप्टो कर लेते हैं, या फिर ऐसे शॉर्टकट ऑप्शन दे लुकआउट जहाँ पे उनको क्विक मनी मिल पाए. Thank you. So, my another question is that what do you suggest? It is the book is related for a specific age group, or the reader from the age of 16, 17 also can read out, because it's a financial book, so they required some technical terms which need to be known earlier before reading it, or you have explained everything in it. So, what's your Yes. view on this? So even I'll tell you one thing, even a 14 years old kid can also read this. So Great, even great. all the languages are very simplified in a generalized language. There is no technical jargons given in it. If there are technical jargons, so I have given the notes also from where they can study कि वो jargon का meaning क्या है, so that उनको वो समझ में आए कि हम जो topic पढ़ रहे हैं उसके पीछे purpose क्या है. Thank you. मेरे को sir, I just would like to add one thing also in this, कि after reading the index, what I suggest to the listeners as well as to the other, I am not having anything, but what I like about this book, the content, the index, is that you're able to identify the things which are really required in your life. And first of all, अगर आप at the age of 18 हैं और 20 हैं, तो if you read this book, तो you will gain the most important skill or knowledge जो आपको हेल्पफुल करेगी. What I think, sir. So और मुझे लग रहा है कि शायद आपने एक्सरसाइज एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी करा है, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ड्स यूज हैं जो कॉमन है 18 ईयर्स के अंदर भी, एंड द पर्सन हुए एट द एज ऑफ 60. सो यू हैव कंबाइंड ऑल द थिंग्स, तो ये कंफर्टेबल रहेगा उनके लिए. एंड ये बुक आई थिंक जो भी प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज मार्केट के अंदर ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो आपको ये बताए कि क्या क्या मिथ्स अवेलेबल हैं, जो आप उनको रियल समझ लेते हैं, और अगर वो रियल भी समझ लेते हैं तो सकते हैं, वो भी प्रोवाइडेड है. अपने यू हैव क्रिएटेड 101, इट्स ए लॉन्ग व्हाट वी कैन मतलब यू हैव क्रिएटेड अ very big scenario in it, so it's a very hard work you have done it. So is there any upcoming work from your side or any projects? Yes. So as I said, I have given the link about a website Danik, where I even uploaded all kind of worksheets. So कोई भी reader है जो पढ़ चुका, अब वो worksheets को use करना चाह रहा है, तो they can use it as a DIY toolkit also. Okay. Plus, I'm also working on to aware more individuals for the financial literacy. So I keep on doing such sessions and awareness program ताकि उनको ये पता पाए, समझ पाए कि इन्वेस्टमेंट्स को हमें देखना कैसे, उसका नजरिया क्या है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स होते क्या है. एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग आउट. एंड यही फ्यूचर वर्क ऑफ एक्शन है. ऑफ कोर्स बुक से रिलेटेड कोई भी और नई इंटरेस्टिंग चीजें आती है, सो आई विल ऑलवेज लुक आउट कि क्या क्रिएटिव तरीके से लोगों तक वो चीज पहुंच पाए. क्योंकि एक चीज थी कि हम लोग जनरली इन्वेस्टमेंट्स का पहला आउटलुक हमारे पेरेंट्स के साथ से करते हैं. क्योंकि जब भी हमारा पैसा आता है हम हमारे घर वालों से पूछ लेते हैं, घर वाले कहते हैं बेटा पैसा आ रहा है, इसकी तो एफडी करा, और वही साइकिल चलती आ रही है. लेकिन उस साइकिल का स्टार्टिंग ब्रेकडाउन क्या होता है, हम खुद के हिसाब से भी कई बार छुप के रिस्क जो लेते हैं, वो छुपके में हम कई आधी चीजों में भी ले बैठते हैं. तो वो सारी चीजों को एक क्रिएटिव तरीके से अगर हमें बचपन में सारी नॉलेज मिल जाती, सो देयर इज ऑलवेज अ सेइंग कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके ग्रास रूट में होता है. और ग्रास रूट कहाँ पे, कि अगर वो नॉलेज हमें स्कूल या कॉलेज लाइफ में मिल जाती तो आज वो चैलेंजेस एज एन इन्वेस्टर या यंग जनरेशन को फेस नहीं करना. सो आपने एक पॉइंट पे कहा था कि किस एज के लिए, दैट्स व्हाई आई सेड 14 इयर्स की एज पे, कि अगर जो 10 साल का या 14 साल का बच्चा भी होगा वो पढ़ने बैठेगा, जैसे ही उसको समझ आएगा कि उसको अपने फादर से क्या क्वेश्चन पूछना है, अगर उन्होंने खुद ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है.
तो वो क्वेश्चन उनके फादर के आंसर देंगे, उसको पता रहेगा कि फादर की यहाँ गलती है या नहीं है, या फादर के साथ कोई डिस्कशन हो पाएगा. सो दैट ऑलरेडी डेवलप्स देयर स्किल्स है कि क्वेश्चंस में भी कई बार लर्निंग हो सकती है, लेकिन इस तरीके से आपको वो आंसर मिल रहा है, उसके बेस पे आपकी कैसे क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं, ये वो बुक के थ्रू मिल जाता है. और इसी का आई एम वर्किंग ऑन कि और क्या क्रिएटिव तरीके से आई कैन रीच आउट टू मैक्सिमम मासेस. दैट्स व्हाट अ फ्यूचर प्लान. दैट्स द मेन पॉइंट विच आई थिंक जो प्रॉब्लम है करंट जनरेशन का, और आई थिंक ये बुक करनी चाहिए, जिससे क्या है कि यूवर जो भी लिसनर्स हैं वो इस बुक को रीड करेंगे, दे एबल टू ग्रैब दैट कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. थैंक यू, एंड थैंक यू द ऑथर फॉर देयर टाइम एंड इनसाइट्स. आपने बहुत अच्छा सूटेबल टाइम दिया, एंड रियली यू हैव डिस्क्राइब द बुक एंड देयर कंटेंट और हाउ कैन इट हेल्प टू द रीडर्स और जो लिसनर हैं. तो थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो थैंक यू टू द लिसनर्स जो हमारी इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं. एंड lastly, I like to signing off. It's Jeetam signing.